Hello and welcome to Maths Matters. This is Priyanka Sharma and here we are going to solve all checkpoints of chapter 6 decimal. Please don't forget to like my video and subscribe my channel. Let's begin. And first checkpoint is decimal write the decimals in the decimal place value chart. So we have to learn to use place value chart to represent whole numbers. If it can also be used to represent decimal numbers with place value defined for the digit before and after decimal points. Okay, let's write decimal numbers in the decimal place value chart. जैसा कि आप सभी जानते हो, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है होल नंबर्स को होल नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर हम डेसिमल को प्लेस वैल्यू चार्ट में रिप्रेजेंट करने वाले हैं. सो लेट्स बिगिन एंड हियर इज द चार्ट related to decimal place value. See, thousand, hundred, tens, ones. DP means decimal point, tenth, hundredth, thousand, 10,000. Okay. Okay. So here is question number A and the digit is 7.936. You have to write in this way. First, ones place digit is 7, point, 10th place digit is 9, 100 place digit is 3 and 1000 place digit is 6. Same that we have to do the question number B, and B question number is 230 point या 230.1081. 230.1081. According to place value, we have to put digit in correct column. Okay. Question number C is 1008.001. 1008.001. Okay. Next one is 48.860. So you have to write 4 in 10th place and 1's place is 8.860. Understand? This is the place value chart and you have to solve question number 1 in this chart. Question number 2 is write the following decimals in their expanded form. You have to write these decimal in their expanded form. As we know that we already solved the expanded form of whole numbers, here we have to solve the decimals in their expanded form. So see the first question. Here 63.007, 63.007, 6t means यहाँ पर आप 60 राइट करेंगे एंड देन 3 in one's place, so write 3 as well. Here is 20 and 20 means first 0 is 10th place, second 0 is in 100th place and third 0 is in 1000th place.
So we don't need to write zeros place value या zeros expanded form. We have to write only seventh place. Okay, so 7 upon 10,000. 10,000 is here, so the seventh place is here. Understand? Question number B is 145.789. 145.789. 1 means 140 plus 5. Then after the point we have to write the digits in tenth, hundred and thousands. So here you have to write 7 upon 10, 8 upon 100 and 9 upon 1000. Understand? Here you have to write 7 upon 10, 8 upon 100 and 9 upon 10. जो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है वो एक्सचेंज हो जाता है, इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है. और डेसिमल पॉइंट के बाद जो हमारे नंबर्स होते हैं उसमें वंस नहीं होता है, ओनली टेंस, 100, 1000 एंड 10,000 होता है. यहाँ पर हमारा सीक्वेंस ये होता है 10th, 100 एंड 1000, बट यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट होता है. ओके, सो और पॉइंट के बाद वाले जितने भी नंबर्स होते हैं वी हैव टू राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म. Understand? Next, question number C is 71.854. 70 plus 1 plus 8 upon 10 plus 5 upon 100 and 4 upon 1000. Okay, next one is 447.414. So you have to write 847 plus 4 upon 10, 1 upon 100 and 4 upon 1000. Understand? Now the next checkpoint is checkpoint number 3, and this is question number 3 is express the given fraction in decimal forms. Here some fractions are given and you have to write their decimal forms. So first of all, write the numerator in decimal form. This is the numerator and denominator. To write numerator in decimal form and then move the decimal point to left as many as place are zeros in the numerators. Here are 2 zeros, so we have to write decimal point before 2 numbers. Understand? Here आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो न्यूमिनेटर पर जो नंबर दिया हुआ है यू हैव टू राइट इट एज वेल. आपको वैसे ही लिख लेना है एंड देन चेक द ज़ीरोज़ इन डिनोमिनेटर्स प्लेस. डिनोमिनेटर की प्लेस पर कितने ज़ीरो हैं वो देखना है. देन मार्क अ पॉइंट बिफोर द नंबर्स. हाउ मेनी ज़ीरोज़ आर देयर? देयर आर 2 zeros. So you have to mark the decimal point before 2 digit. Understand? जितने ज़ीरो यहाँ पर होंगे उतने ही डिजिट के पहले हम पॉइंट को लगाएंगे. Understand? Now the second question is 6 whole 4 upon 100. So first of all we have to write this mixed fraction into improper fraction. So 100 into 6 is 600 plus 4 is 604. So write 604 upon 100. Now write न्यूमिनेटर प्लेस एज वेल. न्यूमिनेटर पर जो भी नंबर दिया है उसको वैसे ही राइट कर दीजिए. देन चेक द
zero, how many zeros are there? There are only 2 zeros, so you have to mark decimal point before 2 digit. Okay, next question number C. 18 whole 43 upon 1000. First of all, we have to convert into improper fraction, and after converting improper fraction, we will get 18,043. When you multiply 18 by 1000, 18 into 1000 and plus 43, you will get 18,043. Understand? Now write 18,043 upon 1000 and write the write the न्यूमिनेटर एज वेल. न्यूमिनेटर्स में जो भी नंबर दिया गया है उसे वैसे ही राइट कर लीजिए. नाउ यू हैव टू मार्क पॉइंट, डेसिमल पॉइंट. सो चेक द डिनोमिनेटर्स प्लेस के ज़ीरो जितने भी हैं वो आप चेक कर लीजिए. एंड देयर आर 3 zeros, सो मार्क योर डेसिमल पॉइंट बिफोर 3 digit. 3 digit से पहले डेसिमल पॉइंट का 3 0 है, इसलिए 3 digit से पहले डेसिमल पॉइंट मार्क कर लीजिए. अंडरस्टैंड? नाउ द डी क्वेश्चन इज 212 whole 343 upon 1000. ओनली 1000 है, 10,000 नहीं है. सो हेयर 212, हाँ 20, ये हो गया आपका 2,12,343 एंड अपॉन 1000. सो यू हैव टू मार्क योर पॉइंट बिफोर 3 digit. ओके, तो द डेसिमल इज 212.343. Now the next question, and here is question number 4. Write 2 more decimal numbers equivalent to each of the following numbers. So here you have to know what are equivalent decimals which can be converted into the same decimal numerals are called equivalent decimals. जब डेसिमल्स जो नंबर्स होते हैं वो इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, तब हमें सेम नंबर के डेसिमल्स को लेना होता है. अगर सेम नंबर्स के डेसिमल हम राइट करते हैं तो वो हमारे इक्विवेलेंट डेसिमल्स कहलाते हैं. You have to add 1 0 and after that you have to add 2 0. यहाँ पर हो जाएगा 0.10 एंड यहाँ पर हो जाएगा 0.100. सेम दैट इन क्वेश्चन नंबर 2 10.2, सो 10.20 एंड 10.200. और अगर यहाँ पर 2 से ज़्यादा बोला जाता तो हम 100 से 1000 से 10,000 पे आ जाते, और वैसे ही यहाँ पर 200 से 2000 एंड 2000 से हम 20,000 पे आ जाते हैं. अंडरस्टैंड? 2 लाख. इस तरह से ये पॉइंट के बाद आपका कंटिन्यू होता रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द गिवन अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल. हियर you have to convert unlike decimal to like decimal. So what you have to do, first of all identify the decimal number with the greatest digit. Identify the decimal number with the greatest digit, and here is the decimal number is 343.001. This is the decimal with greatest digit in decimal place. इसके decimal place पे सबसे ज़्यादा greatest digit है, बिकॉज यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर 2 digit है एंड इसमें ये इक्वल है 208. इसमें भी हमारी 3 digit है, यहाँ पर 1 digit है एंड यहाँ पर 1 digit है, 2 digit. तो पहले हमें
फाइंड करना होगा द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस. ओके, नाउ convert into like decimal, so you have to put zeros according to their decimal place. अंडरस्टैंड. इसकी डेसिमल प्लेस में जितने भी नंबर्स हैं उतने नंबर्स हमें सारे जितने भी हमारे पास डिजिट्स दिए हैं, सॉरी जितने भी हमारे पास नंबर्स दिए हैं उनकी डिजिट्स में इंक्लूड करना है. सो यू हैव टू राइट 1.208. हेयर इज also 3 digits, so you don't need to put zeros, but the next number is 53.880, so here is only 2 digit after the decimal place, so you have to include 1 zero here. Next 443.001, so you don't need to include any zero because here is already 3 numbers, sorry 3 digit after decimal point, but the next number is 30.3, and here you have to include 2 zero, and the next number is 756.77, and here you have to include 1 zero. Now you can see after the decimal point there are equal numbers of digit. ओके, 208 इसमें भी आपकी 3 डिजिट हैं, 880 इसमें भी 3 डिजिट हैं, 011 इसमें भी आपकी 3 डिजिट हैं. तो यहाँ पर आपकी डेसिमल पॉइंट के बाद ऑलवेज 3 डिजिट्स आ रहे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी, एंड क्वेश्चन नंबर बी इज this. So this question is your homework, you have to attempt it by yourself. Question number 6 is compare the following decimal using greater than, smaller than और equal. यहाँ पर आपको साइन लगाने हैं greater than, smaller than and equal के. So first of all you have to convert these digits in like decimal, and then you can easily find which number is greater. So see, here is in question number 8 there is 34.76, and in this digit after decimal there are 2 digits, but the next number is 73.05, and here after decimal point only 1 digit is here, so you have to include 1 zero in this digit, and now there are both numbers is equal, so it is easy to find which number is greater. बट हेयर इज़ वन मोर थिंग जो आपको पहले ही आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्योंकि इसके जो होल नंबर्स हैं उससे ही आपको ये पता चल रहा है कि डेसिमल कि कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो आप ऑलरेडी 73 पे यहाँ पर आप इसका ग्रेटर देन का साइन पुट कर दोगे. बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो नंबर है आपका वो है 34. अगर यहाँ पर कोई भी नंबर होता, कोई भी नंबर, क्या सपोज अगर यहाँ पर 73 ही लिखा होता तो आप कैसे फाइंड करते कि विच नंबर इज़ ग्रेटर. सो यहाँ पर इस नंबर को ग्रेटर पता करने के लिए जब सेम नंबर्स होते हैं, मैं राइट कर देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ. सपोज 34.76 यहाँ पर है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सा नंबर ग्रेटर है, एंड यहाँ पर ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 34.5. सेम नंबर होता है यहाँ पर 73 की जगह, तो आप क्या करते? तो क्या आप इसको फाइंड कर पाते? नो, यू कैन नॉट. आप नहीं फाइंड कर पाते जब तक आप इसको लाइक में कन्वर्ट नहीं करते.
तो जब आप इसको लाइक में कन्वर्ट कर देते तो यहाँ पर हो जाता है 0 एंड नाउ इट इज़ ईजी टू नो विच नंबर इज़ ग्रेटर. सो यू पुट द साइन 34.76 की तरफ, आप 76 वाले नंबर की तरफ ग्रेटर देन का साइन लगाते, नॉट, ठीक है, ना कि आप लगाते 50 वाले की तरफ. तो ये मैं आपको समझाना चाह रही थी, इसलिए इसको लाइक में कन्वर्ट करके बताया था. तो अब इसको करते हैं इरेज एंड नो नीड टू पुट एनी ज़ीरो इन दिस क्वेश्चन. इट वॉज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, या आपकी सिर्फ समझने के लिए था. आपको यहाँ पर ज़ीरो नहीं लगाना है, बस आपको ये ईज़िली दिख रहा है अकॉर्डिंग टू योर होल नंबर यहाँ पर जो भी दिया हुआ है उससे आप इसको पता कर लोगे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है. एंड द क्वेश्चन नंबर बी 198.57 एंड 172.76. हियर इज 198.57 इज ग्रेटर. Question number C 153.23 and 45.323. So here is 453.23 is greater. Now the seventh question is arrange the following in ascending order. Here you have to arrange the number in ascending order. As आप जानते होंगे कि आपने ये पहले भी किए हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, तो आपके लिए बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है जिसकी वजह से आपको इसको करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. तो पहले तो आप समझ लीजिए कि क्या करना है, कैसे आपको कंपेयर करना है और कैसे आपको इन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग में राइट करना है. तो कंपेयर जैसे मैंने आपको भी बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल इन लाइक डेसिमल. जो भी आपके डेसिमल नंबर्स हैं उनको आप लाइक में कन्वर्ट करिए एंड देन उसका असेंडिंग ऑर्डर निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा. जैसे मैंने अभी आपको लास्ट कंपैरिजन जो दिया था ना ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन का, उसमें एक्सप्लेन किया था. तो यहाँ पर देखिए आपको करना है असेंडिंग एंड फर्स्ट ऑफ ऑल राइट हेडिंग एंड राइट द क्वेश्चन नंबर ए, कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल एंड पुट ज़ीरोज़ अकॉर्डिंगली. आप इसमें ज़ीरो पुट कर लेंगे. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेटर डिजिट हैं 160. हाँ, वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू दैट डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स होते हैं उनको हम 100 या 1000 या ऐसे नहीं पढ़ते. मैं भी यहाँ पर मिस्टेक कर गई थी और मैं आपको 1000 और 100 करके बोल गई, बट ऐसा नहीं है. इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 2.165 ना कि 2.165. अगर आप इसे इस तरह से रीड करते हो 2.165, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ टोटली रॉन्ग. यू हैव टू रीड 2.165. ओके, पॉइंट के बाद के नंबर्स को हम अलग अलग राइट भी करते हैं एंड उन्हें बोलते भी हैं. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो 165 एंड 018 दोनों ही इक्वल हैं, बट यहाँ पर जो नंबर्स हैं यहाँ पर हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा. उसके लिए हमें ज़ीरो ऐड करने पड़ेंगे. तो मैंने यहाँ पर ज़ीरो ऐड कर दिए हैं. नाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड विच नंबर इज़ स्मॉलर एंड विच नंबर इज़ ग्रेटर. तो सबसे पहले आप देखिए 2.018 ये सबसे छोटा नंबर है. उसके बाद 2.165 है, 2.165 एंड देन 2.2 के बाद यहाँ पर देखिए 2 ज़ीरो लगे हुए इसलिए 200 हो रहा है. तो ये हमारा 165 से ग्रेटर है. तो ये यहाँ पर आएगा 2.2 एंड देन 2.61 200 के बाद 600 के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये नंबर आपका ग्रेटर है. बट इसके अकॉर्डिंग सिर्फ आपको चेक करना है, आपको इससे इस तरह से रीड नहीं करना है. आप 61 ही पढ़ोगे
2 छोटा है, 6 1 बड़ा है। ठीक है, इस तरह से आप इसको करोगे। क्वेश्चन नंबर बी इज़ योर होमवर्क, अटेम्प्ट योर सेल्फ। आपको इसमें भी चेक करना है ग्रेटर डिजिट्स, एंड यहाँ पर ग्रेटर है तो आपको इन दोनों को इक्वल करके लाइक डेसिमल में राइट करना है एंड देन इसका असेंडिंग ऑर्डर करना है। नेक्स्ट है डेसिमल ऑर्डर, एंड यहाँ पर भी सेम इसी तरह से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इन लाइक डेसिमल, एंड लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव टू चेक डेसिमल प्लेस डिजिट्स। हमें डेसिमल प्लेस की डिजिट्स को चेक करना है एंड ज़ीरो उसके अकॉर्डिंग पुट करना है। एंड यहाँ पर हमारा 1 0 यहाँ पर आएगा एंड ये 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इक्वल हो जाएगा। देन you have to you can write descending order, and 3.86 is this number and ये greater है आपका then 3.756, then 3.640 and then 3.08. Understand? Question number B is your homework. Now here is question number 9, and in this question you have to add. Question number 10 is subtract and question number 11 is simplify. So here also I solved only A of question number 9, A of question number 10 and A of question number 11. Your homework is question number B. Okay, सो यहाँ पर आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए पॉइंट सेम प्लेस पर आना चाहिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लगना चाहिए। सो राइट टू 122.23, फिर है 100.365, 11.20 एंड देन 1.1120। एंड अब हम इसको लाइक में कन्वर्ट कर लेंगे एंड देन उसके बाद ऐड करेंगे। तो जब आप ऐड करोगे योर आंसर विल बी 234.9062. अंडरस्टैंड? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस इज सब्सट्रैक्शन एंड A 52.75 minus 29.34. 52.75 and minus 29.34. 5 minus 4 is 3, 7 minus 3 is 4, 12 minus 9 is 3 and here is 4, 4 minus 2 is 2. So this is your answer, 23.41. Question number 11 is this, and in this question you have to फाइंड, जैसे कि आपको क्या चेक करना है कि जो ऐड वाले दोनों नंबर्स हैं उनको आपको राइट कर लेना है एक साथ, उसके बाद दोनों सब्सट्रैक्शन के नंबर को एक साथ राइट कर लेना है, देन आप इसे सॉल्व करोगे तो ईज़िली होगा। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो नंबर है ये हमारा प्लस का है एंड इसमें भी कोई साइन नहीं लगा हो। जब किसी भी नंबर में कोई साइन नहीं लगा होता है तो हम उसे प्लस ही का समझते हैं। तो यहाँ पर है ये वाला नंबर 6107.57, ये हमारा प्लस का नंबर है एंड दूसरा प्लस का नंबर है 0.564। तो इन दोनों नंबर को आप पहले एक साथ राइट कर लो एंड देन आपके पास है 9, सब्सट्रैक्शन का साइन लगेगा, उसके बाद है यहाँ पर 937.05 एंड देन 760.08। दिस नंबर, ये वाले जो दोनों नंबर हैं ये आपके ऐड हो जाएंगे और माइनस 2 बार अगर एक साथ आ जाता है तो माइनस ऑलरेडी ऐड हो जाते हैं दोनों नंबर, बट हम साइन माइनस का ही लगाते हैं। तो 937.05 एंड 765.08 इन्हें भी हम ऐड करके साइन लगाएंगे हम माइनस का। तो आप यहाँ पर जब ऐड कर लोगे तो आपका आएगा 1702.13 एंड यहाँ पर आपका आ जाएगा 6118.134। ठीक है, अब लास्ट में आप इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लोगे तो योर आंसर विल बी 4416.4।
ओके, 0.4 नहीं, 0.004 बोलेंगे आप इसको। तो ये क्वेश्चन नंबर बी सबके हैं, ये आपको करने हैं बाय योर सेल्फ। एंड जो इसका जो ये वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है बी सिंप्लीफाई का, इसमें देखिए ईज़िली आप कर लोगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन पहले ही लगा हुआ है। तो आपको कोई भी नंबर आगे या पीछे नहीं करना है जैसे हमने इसमें किया। आपको यहाँ पर डायरेक्ट सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, फिर जो आएगा फिर उसके बाद माइनस का साइन लगाइएगा। इन दोनों नंबर्स को भी प्लस करके फिर राइट करिएगा और बाद में सब्सट्रैक्ट करिएगा दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, and question number 12 is Anuja bought apples for rupees 118.45 and bananas for rupees 32.70. If she had 250 with her initially, how much money is left with her now? अनुजा ने एप्पल्स एंड बनाना ख़रीदे हैं और उसका अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। अगर उसके पास 250 रुपीज़ हैं तो अगर वो ये सामान लेती है फिर उसके पास कितना मनी बचेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर ए, अनुजा, इस तरह से आप इसे नोट कर लोगे। कॉस्ट ऑफ एप्पल्स इज़ रुपीज़ 118.45, कॉस्ट ऑफ बनाना रुपीज़ 32.70। तो जब भी हम कहीं से कोई सामान लेते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी 2 थिंग्स जो हमने परचेज़ की हैं वो कितने की हुई, ठीक है, उसका अमाउंट कितना हुआ। तो हम जो हमारा शॉपकीपर होता है उससे हम क्वेश्चन करते हैं कि कितना हुआ भैया, तो वो आपको बता देंगे कि कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए एप्पल्स और बनाना का जो रेट है वो ऐड कर लिया, तो ये हो गया टोटल अमाउंट 151.15। ओके, 151.15 के बाद अब अगर अनुजा के पास मनी था 250 तो 250.00, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है तो हम पॉइंट के बाद ज़ीरो अपने आप लगा देते हैं। अमाउंट हमें पे करना है 151.15 और जब अनुजा को शॉपकीपर रिटर्न करेगा मनी तो वो होगी, जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे आपको पता चल जाएगा 98.85 रुपीज़ अनुजा को रिटर्न होंगे। नेक्स्ट है तरुण अर्न रुपीज़ 445.50 ऑन मंडे, रुपीज़ 332.50 ऑन ट्यूसडे and rupees 156.95 on Wednesday. How much did he earn during those 3 days? कितना मनी उसने अर्न किया 3 दिनों में, तो ये आपको बताना है। तो ऑन मंडे रुपीज़ 445.50, on Tuesday rupees 382.30, on Wednesday rupees 156.95. Now the total answer is the total money is rupees 934.70। 3 days में उसने 934.17 या 17 रुपीज़ अर्न की। नेक्स्ट है सूरज यूज टू 0.250 kg of flour, 0.140 kg of sugar and 0.250 kg of butter to make a cake. How much will the cake weight? इतना जितना भी सामान है वो बनाने में, केक को बनाने में यूज़ हुआ है, तो अब केक का वेट कितना होगा। फ्लोर 0.250, शुगर 0.140, बटर 0.250 केजी में सारा वेट आएगा। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो आपका आंसर होगा 0.640 kg। अंडरस्टैंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए 2.6 इंटू 4, जब आप 4 से 2.6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा
10.4। ओके, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मली हम जैसे मल्टीप्लाई करते वैसे ही कर लेते हैं, और क्वेश्चन में जितने डिजिट के बाद भी पॉइंट होता है आपको उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट वहाँ पर लगाना होता है। नेक्स्ट है बी 11.45। तो यहाँ पर 15 से 11.45 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 171.75, और यहाँ पर भी आपको पॉइंट कितने डिजिट के अकॉर्डिंग लगाना होगा, 2 डिजिट के बिफोर में आपको पॉइंट यहाँ पर राइट करना होगा, बिकॉज जो डिजिट का पॉइंट जितने भी डिजिट में इसमें होगा उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। बट अगर यहाँ पर सी क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.074 एंड 0.09, तो आप नॉर्मल जैसे मल्टीप्लाई करते हो वैसे ही करिए। 9 से 74 को मल्टीप्लाई करने पे आता है 666, एंड ज़ीरो आपको क्या करना है, जो ये 666 आया है उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है। इसको वैसे ही रहने दीजिए और पहले तो चेक कर लीजिए कि पॉइंट हमारा कितने डिजिट के बाद लगने वाला है। तो 470 यहाँ पर 3 डिजिट है एंड यहाँ पर 2 डिजिट, दोनों को ही हम काउंट करेंगे तो दोनों मिलाकर हमारी 5 डिजिट हो रही हैं। आंसर हमारा 3 डिजिट का ही था, तो हम 20 आगे इंक्लूड करेंगे एंड उसके बाद ही हम पॉइंट लगाएंगे। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डी 18.155 इंटू 0.20। तो यहाँ पर भी हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 20 से। एंड आप सोच रहे होगे कि यहाँ पर तो नहीं है 5 डिजिट से पहले पॉइंट, यहाँ पर तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ इसके पीछे 0 आएंगे, 20 आएंगे, यहाँ पर आपके यहाँ पर 20 आएंगे, और इन ज़ीरो को डेसिमल में ऐसा होता है कि जो नंबर्स के बाद यहाँ पर पॉइंट के बाद जो 0 आते हैं पीछे, उनको काउंट नहीं भी लगाएं तो कोई मतलब नहीं बनता, कोई फ़र्क भी नहीं है। अगर आप ना लगाइए और अगर आप लगाइए तो भी कोई फ़र्क नहीं है, तो इसलिए मैंने इन्हें नहीं लगाया। तो आपका आंसर है 3.631। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 है आपका फिल इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पर आपको क्वेश्चन ए दिया हुआ है 6.34, मल्टीप्लाई करना है 10 से। तो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो किसी भी नंबर में तो आप एक ज़ीरो इंक्लूड कर देते हो। जब आप एक ज़ीरो इंक्लूड कर दोगे तो आपको पॉइंट की पोजीशन को भी चेंज करना होगा, क्योंकि इसके क्वेश्चन में पॉइंट की पोजीशन थी हमारी 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट से पहले। सो यहाँ पर 40 के बाद आपका जो पॉइंट है वो चेंज हो जाएगा और वो आ जाएगा इस जगह पर 40 से पहले, तो ये इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब आप इसे करोगे तो 1000 से करोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 और आएंगे, 100 से, 1000 अभी बाद में आएगा। तो जब आप 100 से करोगे तो 20 आएंगे, और आपका जो पॉइंट वाला प्लेस है वो कहाँ पर जाएगा, एक सेकेंड, जो पॉइंट वाला प्लेस है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर पॉइंट लगेगा। तो पॉइंट के पास 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसमें पॉइंट नहीं लगा है। नेक्स्ट है 1000 से, तो जब आप इसे 1000 से करोगे तो यहाँ पर 1 2 3 0 और होंगे, यहाँ पर 3 नहीं होंगे, 20 ही होंगे। तो ऑलरेडी एक ज़ीरो क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप जब पॉइंट 2 डिजिट के बाद लगाओगे तो यहाँ पर देखिए पॉइंट के पास जो 0 की पोजीशन है, 0 की जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी, और यहाँ पर आपको सिर्फ 6340 यही आपको आंसर राइट करना होगा, पॉइंट के बाद वाले नंबर्स नहीं राइट करने होंगे। इसी तरह से आगे के सारे क्वेश्चन हुए हैं एंड नीचे वाला क्वेश्चन भी इसी तरह से हुआ है, इसलिए इनके पॉइंट की पोजीशन चेंज हो गई है। तो इसमें भी देखिए 20.124 है, तो ये हो जाएगा 201.24, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ीरो था और 3 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 3 डिजिट से पहले पॉइंट लगाएंगे तो ये आंसर हमारा चेंज हो जाएगा।
उसी तरह से इसमें भी हुआ है। इसमें 2 ज़ीरो यहाँ पर लगेंगे 3 डिजिट के पहले पॉइंट, तो 4 से पहले पॉइंट आ जाएगा। इसमें 3 ज़ीरो लगेंगे तो 3 ज़ीरो के पहले ही पॉइंट आएगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट के बाद वाला नंबर नहीं है। इसमें भी आपका ऐसे ही होगा, यहाँ पर हमारे 4 ज़ीरो होंगे, तो 4 ज़ीरो के लिए 3 ज़ीरो से पहले पॉइंट होगा, इसलिए 1 ज़ीरो इसमें रह गया है, बाकी 3 ज़ीरो हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से हो जाएगा आपका ये वाला क्वेश्चन। इन्हें सॉल्व करने के बाद अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एंड क्वेश्चन नंबर 15 है आपका डिवाइड, और ये थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि ये है ए क्वेश्चन और मैंने इसको डायरेक्ट किया है। तो अगर आप चाहो तो आप रफ नोटबुक में इन्हें डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। आपका जो क्वेश्चन होगा नॉर्मल जैसे आप डिवाइड करते हो वैसे ही करोगे, जैसे कि आप करते हो, एक सेकेंड आप देखिए, इस तरह से आप राइट करते हो ना, 5 345। आप इसको राइट कर लीजिए क्योंकि पॉइंट है, उसको आप बाद में देखिएगा। और यहाँ पर जब आप इसको पूरा डिवाइड करोगे तो आंसर आपका होगा 5 6 30 एंड यहाँ पर 45 है, तो फिर 9 टाइम्स में आपका ये पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बट क्योंकि हमें पॉइंट में आंसर भी देना है, तो आपको अगर पॉइंट में आंसर देना है तो आप कैसे आंसर दोगे? क्वेश्चन में तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट था, तो ये जो 2 डिजिट है इन्हें आप ऐसे राइट कर लीजिए। पॉइंट 3 डिजिट से पहले ही लगाना है और हम इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते, तो आपको यहाँ पर एक ज़ीरो इंक्लूड कर देना। आगे इंक्लूड करेंगे, बैक साइड में नहीं करेंगे, आगे ही करते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो यहाँ पर एक पॉइंट अब आसानी से आ जाएगा। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी आप देख रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर बी को ध्यान से सुनिए। यहाँ पर देखिए दोनों ही नंबर में पॉइंट लगे हुए हैं। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि दोनों ही तरफ पॉइंट हो तो आपको क्या करना होगा? आपको सिंपल, आपको जो नीचे वाला नंबर है आपका 0.4, इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 10th है, तो इसकी जो प्लेस वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 40 और ऊपर जो आपको दिया हुआ है 56420, तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर पॉइंट का जो प्लेस है वो है 3 डिजिट से पहले, तो 3 डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देंगे ऊपर वाले क्वेश्चन जो न्यूमिनेटर वाली प्लेस है उसमें। बट जो डिनोमिनेटर वाली प्लेस है उसमें 1 प्लेस से पहले पॉइंट है, तो यहाँ पर अगर आप पॉइंट लगा दोगे तो आपकी पॉइंट के बाद वाले ज़ीरो की वैल्यू कम हो जाएगी, तो आपको उसको राइट भी नहीं करना है, इसलिए मैंने नहीं राइट किया था। तो आप इस तरह से, एक सेकेंड, ये इरेज, हाँ, तो अब आप इस तरह से इसको कर लोगे और जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 14.105। जो आंसर होगा वो ये होगा 14.105। पॉइंट आप बाद में लगाओगे, एंड में 3 डिजिट से पहले पॉइंट है तो आप 3 डिजिट से पहले पॉइंट को राइट कर लोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या है? 43.45 है। तो जब ऐसा नंबर हो तो हम क्या करते हैं, हम देखिए क्या करते हैं, आप जब इसको डिवाइड करोगे 100 को करोगे 434.345 से, तो जब आप इसको डिवाइड कर रहे होगे तो आपको जो आंसर होगा वो आपका वही, जैसे कि हमने ऊपर वाले में किया था ना, 5 से इसको डिवाइड किया था एक क्वेश्चन में, वैसे ही करेंगे। तो पहले तो ये 4 टाइम्स में आपका हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 3 टाइम्स में हो जाएगा, तो 300, उसके बाद ये आपका 45 है, तो आप यहाँ पर, हाँ 45 होगा नहीं डिवाइड, इसके लिए आप इसमें पॉइंट लगाओगे। हाँ, इसके लिए आप इसमें पॉइंट लगाओगे, एक ज़ीरो बढ़ाओगे, फिर उस पर 4 टाइम्स में करोगे, फिर 450 हो जाएगा, एंड फिर आप करोगे इसके बाद तो लास्ट में
सॉरी 400 हो जाएगा। फिर 500 के लिए आपको एक पॉइंट लगाइए, 2 ज़ीरो बढ़ जाएंगे और देन आप उसको सॉल्व करोगे। फिर आपको क्या करना होगा लास्ट में, इतना लंबा प्रोसेस मत करिएगा, समझ नहीं आएगा आपको। तो ईज़िली मैं बता रही हूँ आपको क्या करना है इसमें। आप इसे इजीली सॉल्व करिए। आप देखिए यहाँ पर देखिए 3 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो 3 डिजिट से पहले तो हमें पॉइंट लगाना ही लगाना है। बट यहाँ पर 100 में 2 ज़ीरो दिए हुए हैं, तो 2 ज़ीरो और उसमें इंक्लूड कर। 3 डिजिट से पहले पॉइंट मतलब 3 डिजिट ऑलरेडी न्यूमरेटर में है एंड डिनोमिनेटर में 2 ज़ीरो हैं, तो उसको भी हम उसी में इंक्लूड कर लेते हैं। तो 3 और 2 मिला के होता है 5। तो 5 डिजिट से पहले आपको पॉइंट लगाना है, दैट्स इट। तो 5 डिजिट से पहले पॉइंट लगाने के लिए आपको 4 के पहले एक ज़ीरो लगा देना है एंड देन आप उसमें पॉइंट लगा दोगे, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है उसे इम्प्रॉपर कर लेंगे। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन फर्स्ट है 4 होल 1/5, इम्प्रॉपर करेंगे 21/5 हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो 4.2 आंसर आएगा। नेक्स्ट है 3 होल 1/2 7/2 हो जाएगा। जब आप डिवाइड करोगे 3.5। सी है 5 होल 7/20, तो 17/20 को जब आप 3 से 17 नहीं होगा यहाँ पर 170 होगा, ये राइट गलत हुआ है, ज़ीरो यहाँ पर और होगा तभी आप इसे सॉल्व कर पाओगे। तो ये ज़ीरो यहाँ पर रहेगा, आप इसमें तब इसको करोगे तो 170/20 होगा, क्योंकि 25 से 100 होता है और प्लस 7 करेंगे तो 100। हाँ ये रॉन्ग मैंने राइट कर दिया है, यहाँ पर ज़ीरो मिस हो गया शायद, तो ये इस तरह से नहीं होगा इम्प्रॉपर। इसका आप 107/20 करोगे, ठीक है, 107/20, और जब आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर होगा 5.35 5.35, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 and 18. Question number 17. Priya will pay for her new car in 36 monthly payment. If her car loan is rupees 4,33,638, then how much will Priya pay each month? Here question is जो प्रिया है उसको 36 मंथ की पेमेंट करनी है, बट उसका जो कार का लोन है वो है 4,33,638। तो प्रिया को कितना पे करना होगा 1 मंथ में, ये आपको बताना है। तो इसके लिए हम करेंगे डिवाइड, नंबर ऑफ मंथ शी हैव टू पे 36, कार लोन इज़ फॉर रुपीज़ 4,33,638, डिवाइड द नंबर। आप इस नंबर को डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो आपका आंसर होगा, हाँ, तो आप इसका जो आंसर है ये है 12,045.5, ठीक है, इतना उसको पे करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कूल लंच कॉस्ट रुपीज़ 114.50 या 5 पर वीक, अबाउट हाउ मच इट वुड कॉस्ट इन 15 वीक्स, ठीक है, 15 वीक्स में कितनी कॉस्ट होगी, अबाउट में आपको बताना है, लगभग बताना है। जब भी ऐसा होता है तो हमारा जो अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट होता है हम वही बताते हैं, बट यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलरेडी 50.50 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 1,717.50, तो यही आपका कॉस्ट हो जाएगा 15 वीक्स का। अंडरस्टैंड नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, भूलें ना उसे। आप लाइक करना हमेशा भूल जाते हो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो। थैंक यू सो मच।